Good morning, sunshines. Here is your science subject teacher, Mrs. Sarita Chaudhary. Time to study science subject. So, quickly open your science textbooks. We were doing chapter number 9 of this textbook, which is living organisms के बारे में इस chapter के अंदर हम study कर रहे थे. And in previous few videos, since previous few videos, we were doing the topic characteristics of living beings. कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग बींग्स let's study one more last characteristic of the living being which we are going to study in this textbook chapter number 9 and that is students, do all organisms move? बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग पार्ट पहले बात करते हैं जनरल और एक्सपीरियंसेस के बारे में. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं दे शो द सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स वो शो करते हैं, बट दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर नॉट शोन बाय द नॉन लिविंग थिंग्स. एंड व्हाट इज द मूवमेंट? सो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ साइंस, हमने साइंस बुक में एक चैप्टर के अंदर स्टडी किया था, इन द चैप्टर इन विच वी डिस्कस द वेरियस बॉडी पार्ट्स. सो वेयर देयर वी स्टडीड व्हाट द movement is and what is the locomotion. So how we can define the movement and locomotion? Let's recall that over here also. Movement is moving the different parts of our body, like when we are bending our wrist, we are trying to hold something, we are trying to pull something, push something, we are nodding our neck, we are bending our backbone. So these are just the movements. And what is the locomotion then is? लोकोमोशन इज मूवमेंट. हमें समझ में आ गया कि मूवमेंट क्या है, रिकॉल कर लिया हमने. और लोकोमोशन क्या था? इट इज़ दी when one living being, when one organism, it moves from one place to the another place. Like earlier if we are here and यहाँ से A place से movement करके हम पहुँच रहे हैं B place तक. So this kind of movement is called as locomotion, जिसमें हमारी place और position क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. जो जितने भी लिविंग बींग्स होंगे वो सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट या लोकोमोशन शो करेंगे विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स. लेट्स डू द रीडिंग पार्ट नाउ. समझ लिया हमने शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर. अब रीडिंग के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है. इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वेज इन विच एनिमल्स मूव. डिफरेंट एनिमल्स के अंदर मूवमेंट्स के डिफरेंट मोड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स, they used to crawl on the land, they use their muscles, right? वो बॉडी को कर्व करके कर्व फॉर्म के अंदर मूवमेंट करते हैं. we discuss the movement of fish also, that fishes they with the help of certain sort of adaptations in their body, how they swim in the water. बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं. हमने अलग अलग एनिमल्स में पढ़ा था कि उनके अंदर कौन से एडेप्टेशंस हैं मूवमेंट्स के लिए. So they move from one place to another and also show other body movements. What about plants? अब plant they are also the living beings. Animals का तो हमें समझ में आ रहा है कि animals में movements भी होता है and locomotion also take place in their body. But what about the plants? Students, plants they also show certain kind of movements. Locomotion is for sure not shown by the plants, right? वो एक जगह से दूसरी जगह पे चल के नहीं जा सकते, मूवमेंट करके नहीं जा सकते हैं, बट उनकी बॉडी के पार्ट्स में मूवमेंट तो फॉर श्योर होता है. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हमने बिगिनिंग में एक बात की थी जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में, राइट? सो इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड द प्लांट पार्ट्स मूव. उनका जो शूट सिस्टम होता है वो मूवमेंट करके ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है. जो उनका रूट सिस्टम है दैट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड in a plant the water and food, like if we draw the picture of a plant, roots हमने draw किए यहाँ पे और ये उसका stem portion है, shoot portion है, these are the branches and here are the leaves are present over here. So what actually happens, food is being prepared inside the leaves because leaves are called as the food factory of the plant. ये प्लांट की फूड फैक्ट्री हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दैट प्रिपेयर्ड फूड, बट फूड प्रिपेयर तो सिर्फ लीव्स ने किया है. द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स लाइक रूट्स एंड स्टेम्स एंड द ब्रांचेस
they also need that food for their survival. So that food, it moves from the leaves to the various parts of the plant. ये जो food leaves के अंदर बना है वो various part के अंदर movement करता है, right? And for that movement of food in the various part of plant, plants are having special type of tissues, and those tissues are called as phloem tissues. इन tissues को हम क्या कहते हैं? These are the phloem tissues which conduct the food to various part of the plant. And what about the water? Water is being absorbed by the root system. ये जो roots हैं ये water को absorb करती हैं. But roots are not the only part of the plant which need water for their survival. Leaves and the aerial part, they also need water. So this water which is absorbed by the roots, it moves in the upward direction to the various aerial parts. And for the conduction of water from the roots to the various aerial parts, the special tissues are present in the plant body. They are called as xylem, X-Y-L-E-M. They are called as the xylem tissues. You will study about these kind of tissues in your 9th standard in detail. So plants के अंदर भी हमें देखा food का movement हो रहा है, water minerals का movement upward direction के अंदर हो रहा है. Leaves, they also show the certain kind of movements, उनके size में growth हो रही है. So let's do the reading part. explanation के बाद देखते हैं reading में क्या है. book के अंदर लिखा हुआ हमारे पास do they all, यहाँ पे हमारे पास है do they also move. Plants are generally anchored in soil. Anchored मतलब वो fix होते हैं soil के अंदर. So they do not move from one place to the another. That means उनकी body में locomotion visible नहीं होता. However, various substances like water, minerals and food synthesized by them move from one part of the plant to the other. Have you noticed any other kind of movement in plants? Opening of or closing of flowers, right? And आपने stomatas के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि leaves की structure के ऊपर there are minute pores present. छोटे छोटे minute holes होते हैं, pores होते हैं. These pores are called as stomatas. So how sunlight and air enter in the plant body? ना उनको ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को CO2 की रिक्वायरमेंट है. तो ये सनलाइट और ये गैसेस कैसे एंटर करती हैं प्लांट बॉडी के अंदर? दिस इज बिकॉज ऑफ दीज दैट हैपन्स थ्रू दीज स्टोमेटास. वो स्टोमेटास के थ्रू हो पाता है स्टूडेंट्स. एंड दीज स्टोमेटास, व्हाट द स्टोमेटास आर, बहुत ही टू बीन शेप्ड सेल्स होती हैं. अगर हम एक स्टोमेटा को बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो ऐसी कुछ हमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है स्टोमेटा की कि ये दो बीन शेप्ड सेल्स हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स. इन सेल्स को हम गार्ड सेल्स कहते हैं. एंड इन गार्ड सेल्स के बीच में ये जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस इनसाइड द गार्ड सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. तो स्टोमेटा जब भी अपनी सराउंडिंग सेल्स है, यहाँ पे पास में जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं डिफरेंट सेल्स, उन सेल्स के थ्रू स्टोमेटा क्या करता है, गार्ड सेल्स जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये गार्ड सेल्स बहुत ही स्वेल अप हो जाती हैं एंड दे एक्सपेंड, ये फैलना शुरू हो जाती हैं. तो ये जो बीच में स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ओपनिंग. इसको हम स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं. एंड व्हेन the water from these guard cells it moves out, जब वो वापस सराउंडिंग सेल्स में वाटर बाहर निकल जाता है तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, इट विल बिकम श्रिंक. ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगी और जैसे ये श्रिंक होती हैं दिस स्टोमेटा इट गेट्स क्लोज्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग ये भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन द प्लांट बॉडी, राइट. फ्लावर्स में जो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है. टच मी नॉट प्लांट हमने स्टडी किया था, छुई मुई जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसकी जो लीव्स कर्ल हो जाती हैं दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट. स्टिमुलेशन के अगेंस्ट उसका रेस्पॉन्स है. डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई. तो ऑलरेडी हमने इस सेंटेंस के आने से पहले इसके बारे में बात कर ली, टच मी नॉट प्लांट वाली. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग पार्ट. वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स. For example, a bus or a car, a small piece of paper, clouds and so on.
तो पहले समझते हैं कि हाउ दिस बस और कार, ये जो व्हीकल्स हैं, दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स, राइट, दे आर नॉट द लिविंग थिंग्स। इनमें ग्रोथ नहीं होती, दे डू नॉट रिस्पायर, दे डू नॉट एक्सक्रीट द वेस्ट मटीरियल्स, राइट, उनके बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रहा, बट फिर भी दे शो द सर्टेन फीचर्स ऑफ द लिविंग बींग्स। तो इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि बीइंग नॉन लिविंग, what kind of living beings features are being shown by buses and vehicles, जो cars होती हैं वो. So the first feature is movement, right? So movement is the characteristic feature of the living beings, but non living things जैसे बस है, कार है, vehicles हैं, ये भी क्या करते हैं, they move from one place to the another place. इन द मॉर्निंग व्हेन यू रीच टू द स्कूल, तो आप स्कूल के बस व्हीकल्स को, कन्वेंशंस को यूज़ करते हैं, तो बस आपको घर से पिक करती है, इट ड्रॉप्स यू इन द स्कूल, राइट, व्हेन स्कूल गेट्स ओवर एट दैट टाइम ऑल्सो दैट बस ड्रॉप्स यू एट द होम फ्रॉम द स्कूल. तो ये क्या हो रहा है बस के अंदर, इट इज़ अ मूवमेंट, उसमें मूवमेंट हो रहा है. So this is the first feature which is shown by the buses and cars, by all the vehicles. The second feature shown by these vehicles, that is use of fuel. Like for nutrition, we used to intake food. हम food को intake करते हैं, उस food से, that food is called as the fuel for our body. Food is a fuel for our body. क्यों कहा food को हमारी body के लिए एक fuel? Because food का जब हमारी body में breakdown होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले भी, तो हमारी बॉडी को उससे एनर्जी मिलती है, राइट, दैट्स व्हाई फूड इज़ अ फ्यूल फॉर अ बॉडी. सो दिस सर्टेन सॉर्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाय दीज व्हीकल्स. ये पेट्रोल, डीजल, राइट, इनको यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल. So these are the two features which are shown by this non-living bus or car or by all the vehicles. Non-living है, बट ये दो फीचर्स ये लिविंग बींग्स के शो करते हैं. लेट्स कम टू द रीडिंग पार्ट वंस अगेन. इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स? लिविंग बींग्स के मूवमेंट्स में और इनके मूवमेंट में डिफरेंस होता है. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेज दैट यू कैन इमेजिन बाय योर सेल्फ. आपको सोच सकते हो कि हमारे मूवमेंट्स में, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बोन्स and muscles, right, but these buses and cars, vehicles, they do not have any sort of bones or muscles or cartilages, right, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, movements कर रहे हैं. So this is the difference in the movement of living beings and in the movement of non living beings. ये तो मशीनरी, इंजन को यूज़ करते हैं, उस इंजन में अगर फ्यूल होगा तो वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है. There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. Yet another common characteristic is that living beings die. Living beings क्या हो जाती है हमेशा? We all have the lifespan. Lifespan क्या होता है स्टूडेंट्स? It is the time period of our life. हमारी जो लाइफ होती है, जनरली जो ह्यूमन बींग्स की एक एवरेज लाइफ है, that is 70 to 80 years, right? तो वी लिविंग बींग्स, वी गेट बर्थ, हमारी बर्थ होती है, देन वी गेट ग्रो इन साइज, हमारा साइज ग्रोथ होगी, फ्रॉम द इन्फेंट वी टर्न इनटू द एल्डर, राइट, फिर हम मैच्योर होने के बाद ओल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम जब हमारा लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, डेथ अकर्स. So because organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they produce their own kind. So this is the main reason of the reproduction. Reproduction का main benefit क्या है? Through the reproduction, we continue our species. Like just imagine if the dogs they stop doing the reproduction, so और जब वो बड़े होंगे तो उनकी तो डेथ हो जाएगी. So आने वाले कुछ साल के बाद, like after 100 of years or 200 of years, there will be not any sort of dogs on this earth. Dog की हमें कोई भी species इस अर्थ पे दिखाई नहीं देगी. So for the continuity of the species, ताकि हमारी own kind exist करते रहें अर्थ के ऊपर, reproduction organism show करते हैं. One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is a reproduction. So students, आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे इस टर्म के बारे में. There are certain life processes, right? What these life processes are? Life processes are the processes which are essential for survival of an individual.
like respiration, excretion, circulation, these all are the life processes. अगर इनमें से एक भी सिस्टम वर्क करना बंद कर दे, अगर हम रेस्पिरेशन ना कर पाए, अगर हमारे बॉडी में सर्कुलेशन ना हो, अगर हम एक्सक्रीशन करके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज ना करें, तो क्या हो जाएगा, अ डेथ विल अकर, हमारी डेथ कॉज हो जाएगी, राइट. सो लाइफ प्रोसेसेस किसके लिए एसेंशियल हैं, एक इंडिविजुअल हमारी खुद की बॉडी की कंटिन्यूटी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. बट रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ अवर बॉडी विच इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन. कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं भी करता है तब भी उसकी लाइफ स्पैन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी नॉर्मल नेचुरल जो उनकी लाइफ है वो स्पेंड कर सकते हैं. बट दिस रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़. जो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे कभी ख़त्म ना हो जाएं, उसके लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स. टाइम टू गेट होमवर्क. सो नोट डाउन one question today. The first question for today that I am giving you students, let me think what question should I give. Okay, fine. So after completion of all the different characteristic features of the living beings, so today I am giving you the question that is, list all the characteristics ऑफ लिविंग बींग्स. अब आपने सारे लिविंग बींग्स में जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो स्टडी कर लें, तो आपको यहाँ पे सिंपली उनको नोट डाउन करना है, लिस्ट करना है. द सेकेंड क्वेश्चन आई एम गिविंग, लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स of living beings which are also shown by non-living things. आपको कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि एक नॉन लिविंग थिंग का एग्जाम्पल लेना है और उसमें कौन से 2 लिविंग बींग्स के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट यू नीड टू नोट डाउन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम कंप्लीशन के बाद, एंड टेक केयर स्टूडेंट्स. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.